دوستو سلام مسنون. اب وی ایم خلیل الرحمان سے اردو میں خبریں سنیے گا. بے روزگاری ملک کا سب سے بڑا ایشو ہے. یوتھ کانگریس کا پیگاسس مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف مظاہرہ. راہل گاندھی کا خطاب. کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے آج پھر مرکزی حکومت کو نشانہ بنایا اور یوتھ کانگریس کے کام کی تعریف کی. واضح رہے کہ پیگاسس پیٹرول ڈیزل گیس سلنڈر کی بڑھتی قیمتوں اور ہوش ربا مہنگائی کو لے کر کانگریس لگاتار مرکزی حکومت پر حملہ آور ہے. اس تعلق سے جمعرات کو یوتھ کانگریس نے مرکزی حکومت کے خلاف سڑکوں پر اتر کر مظاہرہ کیا. یوتھ کانگریس کارکنان بڑی تعداد میں رائے سینا روڈ پر ہاتھوں میں بینر اور پوسٹر لیے پہنچے. کارکنان نے مرکزی حکومت کے خلاف نعرے بازی بھی کی. یوتھ کانگریس کے اس مظاہرے میں کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی بھی شریک ہوئے. راہل گاندھی نے کہا کہ ملک میں سب سے بڑا ایشو بے روزگاری ہے. راہل گاندھی نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی روزگار پر ایک لفظ بھی نہیں بولتے. پچھلے 7 سالوں میں 12 کروڑ نوجوانوں کو روزگار نہیں ملا جیسا کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا. انہوں نے کروڑوں نوجوانوں کا روزگار چرایا. راہل نے کہا کہ پی ایم نریندر مودی نے یہ پارٹنرشپ بنائی ہے جو ملک کے غریبوں کے ساتھ نہیں بلکہ صنعت کاروں کے ساتھ ہے. یہ نوجوانوں، کسانوں، مزدوروں اور چھوٹے تاجروں کے ساتھ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ لوک سبھا میں ارکان پارلیمنٹ احتجاج میں کھڑے ہیں لیکن یہ سچائی لوک سبھا ٹی وی پر نہیں دکھائی جائے گی. حکومت کا کام سچ چھپانا ہے. راہل گاندھی نے دہلی کینٹ میں ایک دلت نابالغ کی مبینہ عصمت روی اور قتل کے معاملے پر بھی حکومت کو گھیر لیا. انہوں نے کہا کہ ایک چھوٹی سی بچی کو قتل کیا گیا، زیادتی کی گئی. کہیں یہ خبر میڈیا میں شائع ہوئی. یہ حکومت عوام کی آواز کو دبانا چاہتی ہے. جس دن ہندوستان کے نوجوانوں نے بولنا شروع کیا مودی حکومت کا وقت ختم ہو جائے گا. واضح رہے کہ کانگریس کے سابق صدر نے بدھ کے روز 9 سالہ بچی کے والدین سے ملاقات کی تھی اور انہیں انصاف دلانے کے لیے ان کی مکمل مدد اور حمایت کی یقین دلایا تھا. پیگاسس معاملے پر راہل نے کہا کہ کسی نے مجھے بتایا کہ جاسوسی کا معاملہ چھوٹا مسئلہ ہے. یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نریندر مودی نے دوستو 370 اور 35A کی تنسیخ کے 2 سال مکمل. بی جے پی نے منایا جشن. ریاستی پارٹیوں نے کی فیصلے کی مخالفت. جموں و کشمیر کو خصوصی حیثیت دلانے والی آئین ہند کی دفعہ 370 کی تنسیخ کے 2 سال مکمل ہونے پر جمعرات کو 2 ایک معمولی واقعات کو چھوڑ کر وادی کشمیر میں دن معمول کے مطابق گزرا. شری نگر میں حالانکہ کہیں دکانیں بند رہیں تاہم مجموعی طور پر کاروبار زندگی عام دنوں کی ہی چلتا رہا. اس دوران بی جے پی کے کئی کارکنوں نے مختلف علاقوں میں جمع ہو کر دفعہ 370 کو ختم کر دینے کے فیصلے پر 2 سال مکمل ہونے پر خوشی منائی. تاہم سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے ایک احتجاجی ریلی نکالنے کی کوشش کی.
महबूबा ने आज के दिन को जम्मू व कश्मीर की तारीख़ का स्याह तरीन दिन करार दिया। मज़कूरा फ़ैसले की मुखालिफत करने वाली दीगर कई जमातों ने भी इसी तरह के बयानात दिए। वाज़ह रहे कि बीजेपी की क़ियादत वाली मरकज़ी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू व कश्मीर को मखसूसी हैसियत दिलाने वाली आईन हिंद की दफ़ा 370 और जम्मू व कश्मीर की ज़मीन को यहाँ के बाशिंदों के लिए महफूज करने वाली दफ़ा 35A को इंतहाई राजदारी के साथ हटा दिया था। इस फैसले से कबल सरकार ने न सिर्फ जम्मू व कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज किया था, बल्कि अलहदगी पसंद कायदीन व कारकुनान के अलावा 3 साबिक़ वज़राए आला समेत मेन स्ट्रीम के दर्जनों लीडरों को भी गिरफ़्तार किया गया था। मरकज़ की इस फैसले की पहली बरसी पर गुज़िश्ता साल वादी कश्मीर में हड़ताल रही थी, जबकि नुक़्स अमन के अंदेशे के सबब सरकार ने सिक्योरिटी का भी ख़ास बंदोबस्त किया था। ताहम जुमेरात को इस वाक़ये की दूसरी बरसी के मौके पर सिक्योरिटी का कोई गैर मामूली बंदोबस्त नहीं देखा गया, बल्कि चीज़ें आम दिनों की तरह ही चलती रही। हालांकि श्रीनगर की सड़कों पर ट्रैफिक की नकल व हमल मामूल से कुछ कम थी और लाल चौक व दीगर इलाक़ों की बेशतर दुकानें बंद थीं। ताहम किसी की तरफ से मुकम्मल हड़ताल की न कोई काल थी और न ही कहीं पर मुकम्मल हड़ताल होते देखी गई। जो दुकानें खुली थीं वो मामूल के मुताबिक काम में मसरूफ़ थी। श्रीनगर से बाहर से भी कहीं से मुकम्मल हड़ताल रहने या किसी नाखुशगवार वाक़ये के पेश आने की कोई इत्तला नहीं है। जनूबी कश्मीर के खन्नाबल में बीजेपी के कारकुनों की जानिब से जमा होकर एक मुख्तसर जुलूस निकालने और तिरंगा लहराने की इत्तलात हैं। बताया जाता है कि पार्टी के एक साबिक़ MLC यूसुफ सूफ़ी और एक खातून कारकुन ने 2 अलग अलग मकामात पर सिक्योरिटी के बंदोबस्त के बीच जुलूस निकाले और ख़ुशी का इजहार किया। यूसुफ सूफ़ी ने दावा किया कि दफ़ा 370 की तनसीख के बाद जम्मू व कश्मीर में गैर मामूली बदलाव आया है। श्रीनगर में बीजेपी की सदर और साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने अपने कारकुनों को लेकर एक एहतजाजी रैली निकालने की कोशिश की, ताहम उन्हें रेजिडेंसी रोड पर वाक़या पार्टी हेडक्वार्टर से कुछ दूर ही पुलिस ने रोका और लाल चौक पर कोरोना यतीम हुए बच्चों को मिलेगा 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस। मरकज़ी हुकूमत ने कोरोना के सबब यतीम हुए बच्चों के लिए एक बार फिर पैकेज का ऐलान किया है। मरकज़ी वज़ीर अनुराग ठाकरे ने कहा कि कोविड-19 वबाई इमराज के दरमियान हुकूमत ने 18 साल तक के इन्फेक्शन की वजह से यतीम बच्चों को 5 लाख रुपये का मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस फराहम करने का फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा है कि प्रीमियम PM केयर से अदा किया जाएगा। ठाकरे ने ट्वीट करते हुए कहा कि कोविड-19 से मुतासर बच्चों की देखभाल के लिए उठाए गए इक़दाम के एक हिस्से के तौर पर 18 साल तक के बच्चों को आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपये का मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस फराहम किया जाएगा और इसके प्रीमियम की अदायगी PM केयर से की जाएगी। उन्होंने ट्वीट के साथ एक तस्वीर शेयर की जिस पर लिखा था कि 18 साल तक
के बच्चे जिन्होंने कोरोना वायरस के सबब अपने वालिदैन को खोया है उन्हें हर माह माली मदद दी जाएगी। इसके साथ 23 साल की उम्र में उन्हें 10 लाख रुपए की रकम दी जाएगी। पीएम मोदी ने 29 मई 2021 को बच्चों के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम शुरू की थी। इस स्कीम के मकसदान बच्चों की मदद करना है जिन्होंने 11 मार्च 2020 से शुरू होने वाली मुद्दत के दौरान कोविड-19 वबाई मर्ज़ में वालिदैन या क़ानूनी तौर पर अपने सरपरस्त दोनों को खोया है। इस स्कीम का मकसद बच्चों को जामिया देखभाल और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। इस स्कीम के ज़रिए उनकी मुसलसल मदद करना, हेल्थ इंश्योरेंस के ज़रिए उनकी फलाह व बहबूद के लिए उनकी मदद करना, जिसमें उन्हें 23 साल की उम्र तक माली इमदाद देकर खुद कफील बनाना शामिल है। दोस्तों, 41 साल बाद हिंदुस्तानी हॉकी टीम को ओलंपिक में तमगा। हिंदुस्तानी मर्द हॉकी टीम ने जुमेरात को टोक्यो ओलंपिक में जर्मनी को शिकस्त देकर 41 साल बाद ओलंपिक में कांसा मेडल जीत कर तमगों के कहत का खात्मा कर दिया। साल 1980 के मास्को ओलंपिक खेलों के बाद ये हिंदुस्तान का पहला ओलंपिक हॉकी तमगा है। साथ ही ओलंपिक की तारीख़ में ये हिंदुस्तान का तीसरा हॉकी कांसा मेडल है। दोस्तों, अब अखबार ज़र्रीन सुनिएगा। एक, इंसान को उसकी बुराइयों समेत कबूल करने वाला ही उसका सच्चा दोस्त है, क्योंकि खूबियाँ तो दुश्मन की भी मुतासर करती हैं। 2, बाज़ लोगों को सोच की खूबसूरती उनके आम से चेहरे को पाकीज़ा और जाज़िब नज़र बना देती है। 3, ख्वाहिशें बादशाहों को ग़ुलाम बना लेती हैं, मगर सब्र ग़ुलामों को बादशाह बना देता है। 4, अमीरों से न डरो बल्कि गरीबों की आह से डरो, इसलिए कि अगर अमीर भागेगा तो वो हाकिम के दरवाज़े पर जाएगा, और अगर गरीब ने आह भर ली तो वो अल्लाह ताला के दरवाज़े को खटखटाएगा। बस आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।